نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ عزیزو، یہ بڑا ہی مبارک وقت ہے کہ ہم اس وقت اس لمحے خداوند کے حضور جھکے ہیں، اس کے حضور آئے ہیں، اس کی شکر گزاری کرنے آئے ہیں۔ چند ہی لمحوں میں ہم 2021 میں داخل ہو جائیں گے، اور کتنی مبارک بات ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے، اس کی عبادت کرتے ہوئے، اس کی پرستش کرتے ہوئے 2021 میں داخل ہوں گے۔ ہاللیلویہ! اس سے مبارک، اس سے قیمتی بات نہیں ہے۔ ہم شکر گزاری کریں گے، شکر گزار ہیں خداوند یسوع مسیح کے کہ اس نے ہماری زندگیوں میں بے شمار برکات ہمیں بخشی۔ 2020 میں ہمیں ہر طرح سے سنبھالے رکھا، کووڈ-19 پینڈیمک سے ہمیں محفوظ رکھا، ہمیں صحت دی، تندرستی دی۔ یہ اس کی محبت اور اس کا فضل ہے ہمارے اوپر۔ پھر جو لوگ صاحب اولاد ہیں ان کو تندرست اولاد بخشی، کیونکہ اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے، زبور میں لکھا ہے، وہ بخشی، صحت تندرستی ان کو عطا کی۔ پھر ہمیں مالی طور پر برکات سے نوازا، بے شمار برکات ہمیں بخشیں 2020 میں اگر ہم دیکھیں۔ پھر ہمیں روحانی طور پر برکات سے نوازا، ہمیں اپنے ساتھ رکھا، وہ اس نے جیسے کہا اس نے ہمارے ساتھ اپنا ساتھ دیا۔ اس لیے اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں عزیزو، ہماری عمر کے دن ختم ہو سکتے ہیں لیکن شکر گزاری ختم نہیں ہو سکتی۔ جتنا بھی شکر ادا کریں ہم، یہ کم ہے، کیونکہ اس نے ہمیں تمام تر نعمتیں اور برکتیں عطا کی ہیں، اور انکنڈیشنل طور پر، غیر مشروط طور پر ہمیں تمام تر نعمتوں سے اور برکات سے نوازا ہے۔ اس لیے اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں ہماری زندگیوں میں کم ہے، اور ہماری زندگیاں کم پڑ جائیں گی لیکن شکر گزاری ختم نہیں ہو سکتی۔ اتنا بڑا قادر مطلق خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویہ! بہرحال وقت کم ہے لیکن پھر بھی ایک دو پوائنٹ میں پڑھوں گا۔ بائبل مقدس جن کے پاس ہے کھولیے لوکا کی انجیل اور اس کا 13واں باب اور اس کی 6 آیت۔ پھر اس نے بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے، پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے تاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا اور اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ، 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال۔ یہ زمین کو بھی روکے رہے؟ سوالیہ نشان ہے۔ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم نے گزشتہ سارے سال ہماری حفاظت کی، ہماری نگہبانی کی، ہمیں نعمتیں عطا کی، ہمیں برکات عطا کی، روحانی نعمتیں، دنیاوی نعمتیں، خاندانی نعمتیں، ہر طرح کی نعمتیں عطا کی۔ اور اس وقت جب میں نے یہ تمثیل یسوع مسیح کی کہی پڑھی لوکا کی انجیل میں، یسوع مسیح نے جب اس زمین پر تھے تو بہت ہی آسان طریقوں سے، تمثیلوں سے سمجھانے کی کوشش کی لوگوں کو، بڑے آسان اور سمپل طریقے سے، سادہ طریقے سے سمجھایا۔ اور یہاں پر یہ تمثیل میں ایک درخت کا ذکر ہے، اور عزیزو وہ جو درخت ہے وہ ہم ہیں۔ باغ، دنیا اور درخت ہم ہیں۔ اب اس میں
खुदा आता है और वो आके देखता है कि हमने कितना फल दिया, क्योंकि जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, जब वो हमें नेमतें अदा करता है, जब हमें वो तमाम तर बरक़ात और तमाम तर सहूलियात और हिफाजत और निगहबानी हमें अता करता है, हमारी हिफाजत करता है, फिर इसका मतलब ये है अदर वे कि उसका रीज़न है हमें संभालने का और ज़िंदा रखने का, सेहत और तंदुरुस्ती देने का रीज़न है। और वो रीज़न इस तमसील में हमें मिलता है कि हमने क्या लाना है, फल लाना है। और यीशु मसीह यहाँ पर बड़ी मुबारक बात अजीज़ो, हमेशा की तरह जैसे निजात दहिंदा एक ही है इस दुनिया में यीशु मसीह, इसी तरह शिफात करने वाला हमारी वो भी एक ही है और उसका नाम है यीशु मसीह। और वो बाप से शफात करता है कि नहीं अभी इसको रहने दे, अभी मैं इसके गिर्द खाद डालूंगा, इसको और बढ़ाऊंगा। और वो हमारी मदद करता है, रूल कुद्स के वसीला से हमसे कलाम करता है, हमारे ख्यालों में आता है, हमें रोया बख्शता है, विजन बख्शता है, ताकि हम उसके हजूर फलदार साबित हों। और ये सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह के पास कुदरत है कि वो बाप के आगे हमारी शफात करता है। इसलिए वक्त थोड़ा है, इसको मैं वाइंड अप करूँगा और ये कहूँगा कि अजीज़ों, चंद लम्हों में हम 2021 में 2021 में दाखिल हो रहे हैं। डीप डाउन अपने दिल की गहराइयों में सोचें, समझें, देखें कि क्या हम फलदार रहे 2020 में। बिकॉज़ हम जो हैं खुद इंसान अपना सेल्फ सेंसर अच्छे तरीके से कर सकता है। क्या हम इस 2020 में उसके हजूर फलदार रहे? उसने हमें संभाला, नेमतें दी, बरक़ात दी, दुनियावी बरक़ात, रूहानी बरक़ात, ख़ानदानी बरक़ात। और उसके बरक्स क्या हम उसके हजूर फलदार रहे? अब आने वाला साल हमें ये पैगाम देता है कि हम उसके हजूर फलदार साबित हों और उसके हजूर आएँ। अगर आप आज ये समझते हैं कि आप फलदार नहीं रहे, क्योंकि हम अपने दिलों के अंदर झांक कर, अपने अंदर देख कर ये सोच और समझ सकते हैं कि हमने फल दिया रूहानी तौर पर अपने बाप के हजूर के नहीं। इसलिए आइए आज देखें कि हम फलदार साबित रहे हैं। नहीं तो आज वादा करें, आज उसके हजूर झुकें कि खुदावन तेरा शुक्र हो सारे साल की हिफाजत और निगहबानी के लिए। अब आने वाला साल जो है मैं फलदार रहूँगा, फलदार साबित होऊंगा तेरे हजूर, और तेरे हजूर मैं फल लाऊंगा, क्योंकि तू मेरी शफात करता है खुदा के हजूर। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और मैं डॉक्टर साहब को कहूँगा वो आएंगे और आगे मीटिंग को चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। बहुत ही खूबसूरत दो बातें हमने सीखी कि गुज़श्ता साल के लिए बरकतों का शुक्रिया अदा करना और आइंदा फल लाने के लिए तैयार रहना। और आप फल लाएंगे, हालेलुया, आप फल लाएंगे, क्योंकि अभी पास्टर राबन ने ये सुनाया कि हमारा शफात करने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। तो वो शफात करने वाला कहता है मैं क्या करूँगा, खाद भी डाल दूँगा इसको और खाला भी खोद दूँगा। वो भी कहता है मैं खुद ही कर लूँगा, लेकिन इसे रहने दे। तो तैयार हो जाए, हर तरह की खाद आपको वो मुहैया कर देगा, हालेलुया और आपके चुके थाला खोद देगा, पानी देगा आपको, हालेलुया। सिर्फ आप तैयार हो जाएं कि उसके साथ अमन करें कि हाँ खुदा तो हमारी शफात करता है, हाँ खुदा तो आइंदा साल भी हमें हर चीज़ मुहैया करेगा ताकि हम फल लें। तो हम खुदा एग्री हैं, हम फल लाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो फिर वो कुव्वत देगा, क्योंकि वो हर रोज़ हमारी शफात करता है। वो किबरिया की दानी तरफ
मुर्दों में से जी उठ कर के बैठा हुआ है और हर रोज़ हमारी शफात करता है। और जिस तरह खुदा के खादम ने ये सुनाई बात बड़ी ख़ास कि जिस तरह दुनिया में नजात दहिंदा एक ही है, शफात करने वाला भी एक ही है। हालेलुया। और उसी की शफात बाप सुनता है, ये याद रखें। उसी ने कहा मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे तुमको, शफात करने वाला एक ही है और उस ही की शफात से हम बरकत पाते हैं। बाकी कोई कितना भी मुकद्दसीन में खूबसूरत, कितना कामिल क्यों ना हो, लेकिन शफात जिसकी सुनी जाती है, जो शफात कर सकता है, उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। और वो ही हमारी शफात के लिए हमेशा हमेशा जिंदा है। हालेलुया। आइए हम इसका भी शुक्रिया अदा करें कि उसकी शफात से हमें नया साल मिला है। हालेलुया। बरकतें मिली हैं, क्योंकि कई लोग इस दिन को देख नहीं सके। ये जो कोरोना की वबा है, कई इस दुनिया से रुखसत हो गए। लाखों की तादाद में तरक्की याफ्ता ममालिक में भी, तरक्की पजीर ममालिक में भी, और दीगर जितने भी ममालिक हैं पूरी दुनिया में, गरीब हैं, अमीर हैं, जहाँ मर्जी रहने वाले हैं, साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी ये मुकाबला इतना सख्त था कि लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। लेकिन यीशु मसीह के लहू की कुदरत ने आपको संभाल के रखा। हालेलुया। तो इसलिए फिर उस खुदावंद यीशु मसीह का दिल की गहराइयों से क्या करना चाहिए? आए फिर खड़े होकर शुक्र करें। हालेलुया। ग्लोरी टू लॉर्ड, ग्लोरी टू लॉर्ड। अपने मुंह को खोलें, अपनी आवाज़ बुलंद करें और शुक्रिया अदा करें कि बाबा हमारा नुकसान नहीं कर सकी, बाबा हमें ख़त्म नहीं कर सकी, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। उसका मुबारक लहू हमारी शिफा है, उसका मुबारक लहू मौजज़ात करता है। हालेलुया। और आज दुनिया को खुदावंद यीशु मसीह की ज़रूरत है। आज अगर कोई जिंदगी, शिफा और नजात और सलामती चाहता है तो सलामती का शहजादा मौजूद है। हालेलुया। आइए अपनी आवाज़ को बुलंद करें और शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें। सलामती का शहजादा आपके साथ है, आपका शाफी आपके साथ है, और वही आज कलाम सुना है हमने, वही हमारी शफात करता है, शफात करता है। अगर कमज़ोर हो जाए शफात करता है, अगर बीमार हो जाए शफात करता है, अगर बेदिल हो जाए शफात करता है, अगर कमज़ोर हो जाए शफात करता है, अगर पिछले साल हम फल नहीं लाए तो शफात करता है, और आइंदा साल हमें पहले से ज़्यादा बरकत देने के लिए शफात कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। खूब शुक्रगुजारी करें, खूब शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। अपने शफात करने वाले के लिए शुक्रिया अदा करें। हालेलुया। दिल खोल के, मुंह खोल के, ज़हन खोल के, दिल की गहराइयों से उसका शुक्रिया अदा करें। आए शुक्रिया अदा करें अपने अपने तौर पर, अपने ख़ानदानों का, ख़ानदानों के लिए। हालेलुया। उसने हमें आज तक संभाला है, हमें सेहत दी है। हालेलुया। हमारी परवरिश भी की है पिछले गुज़श्ता साल में, और आपने देखा किस तरह माली तौर पर
लोग मुश्किल का शिकार हुए, लेकिन खुदा ने हमें हर तरह की चीज़ मुहैया की, खाने की, पीने की, पहनने की, रहने की, सहने की, आसाइश की, ज़बाइश की, रहाइश की चीज़ें उसने हमें अता की हैं। हालेलुया। और आइंदा साल भी वो पहले से ज़्यादा करेगा, क्योंकि वो मौजज़ात का खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, तेरा शुक्र हो। इस मुबारक लम्हात में मैं आपके लिए खुसूसी दुआ करना चाहता हूँ। जो चाहते हैं मैं उनके लिए खुसूसी दुआ करूँ, अपना हाथ आसमान की तरफ बुलंद कर दें। और जो 7 स्टार टीवी के लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी हमारे साथ दुआ में शामिल हो जाए। उनकी भी कोई ज़रूरत है तो हमारे साथ दुआ में शामिल हो जाए। हालेलुया। आसमानी बाप, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इन तेरे प्यारे बेटों और तेरी बेटियों के लिए, जो इस बड़ी सर्दी में दूर से नज़दीक से सर्दी की परवाह ना करते हुए तेरी मोहब्बत में जकड़े हुए शुक्रगुजारी करने के लिए, तुझे सिजदा करने के लिए खुदावंद चर्च में आए हैं। इन पर तेरी सलामती, तेरी बरकत हो, क्योंकि तू खुदावंद हमारा अजर देने वाला खुदा है। हालेलुया। मैं दुआ मांगता हूँ, इन्होंने आसमानी बाप तेरी तरफ हाथ को बुलंद किया है, जो भी इनकी ज़रूरत है, जो भी इन्होंने दिल में ठाना है, मैं आसमानी बाप तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के मुबारक नाम में दुआ मांगता हूँ। ऐ आसमानी बाप, इनका मौजा, ऐ खुदावंद इनकी बरकत, इनकी नेमत इन्हें अता फरमा, जो भी ये चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने हाथ खड़ा किया है। और ऐ खुदावंद इन सारे ख़ानदानों पर तेरी सलामती हो, इनकी औलाद पर तेरी सलामती हो, इनके कारोबार और जॉब पर तेरी बरकत और तेरी सलामती हो, इनके आने और जाने पर, इनके प्लान और मंसूबों पर तेरी बरकत हो। और आने वाला इन सब के लिए नया साल जो है आसमानी बाप, नई बरकतें, नई खुशियाँ, नई कामयाबियाँ, नई नेमतें और सरफराजी ले करके आए। मेरा ईमान है आसमानी बाप, जो कुछ हमने इस वक्त मांगा है तूने पहले की तरह हमारी दुआ को सुन लिया। यीशु मसीह नासरी के नाम में मेरी तरफ से आप सबको नया साल मुबारक हो। नए साल की खुशियाँ आपको मुबारक हो और नया साल आपके लिए नई बरकतें ले करके आए। हालेलुया। आइए हम इस नए साल को वेलकम करें और खुदावंद यीशु मसीह को वेलकम करें। हालेलुया। नए साल के साथ नई बरकतें। हालेलुया। तालियों के साथ हम वेलकम करें और खुदा का शुक्रिया अदा करें।